इस वीडियो लेसन में। ये हमारे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो कि चैप्टर नंबर 3 है, उसका थर्ड पार्ट है वीडियो का। इससे पहले दो पार्ट में बहुत सारी बातें जानी सीखी। In previous part, we studied about how to solve pair of linear equations graphically method, by graphical method or by geometrical method. With the help of using a graph paper, we can solve a pair of linear equation in two variables. What is the solution of pair of linear equation in two variables? The solution of pair of linear equation in two variables means to find the value of x and y. We all know that standard form of pair of linear equation means the two equations like a1x plus b1y is equal to c1 या plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is called pair of linear equation where x and y are variables. Okay, and a1, b1, c1 are constant quantities. a1 is coefficient of x, b1 is coefficient of y, and c1 is constant term. a2 is coefficient of x, b2 is coefficient of y, and c2 is constant term. So a1, b1, c1, a2, b2, c2 are constant numbers of constant quantities. Now by graphical method we solve various questions, various equations, and we also knew about how to determine the solution of pair of linear equation. हमने वहाँ पे कंडीशंस पढ़ी थी। किस तरह कंडीशंस थी? By comparing the ratios of a1, a2, b1, b2 and c1, c2. कुछ इस तरह से हमने a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 को निकाल के देखा था कि अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है तो there will be only one solution. और भी कुछ कंडीशंस में पढ़ी थी। तो आई होप आप सबने इसको अच्छे समझा होगा। एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 भी सॉल्व कर ली होगी। Now today we shall discuss our new concept, that is solving pair of linear equation by algebraic method. Algebraic method, graphical method and algebraic method. Now in algebraic method we have three sub methods, and those three sub methods are substitution method, elimination method and cross multiplication method. These three methods are called algebraic method. In these three methods we will use the concept of algebra. Okay, now I shall discuss the first method, substitution method, by taking a question from exercise 3.3. This is first question, first part of exercise 3.3, and the questions are x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. Okay, अब यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे पास हैं and we will solve these two equations by substitution method. Now the word substitute means to change a variable in terms of another variable. हमने करना क्या है, x या y में से किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब हम समझते हैं कि जैसे इसकी जगह पर दूसरा कोई आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है हमें। तो कैसा है, इसका एक पूरा एक मेथड है, वो समझेंगे आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एनी वन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए, दोनों में से आप किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए। जनरली वी टेक द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus y is equal to 14, इसमें करना क्या है, what we have to do, we will find the value of any one variable, किसी भी एक वेरिएबल की, whether it is x or it is y. To find the value of any one variable in terms of another variable, इस y को अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, इस y को राइट हैंड साइड में ले जाना होगा, ट्रांसपोज करना होगा। Now it is plus y, so it becomes minus y. Now I have the value of x in terms of y, and the value of x is 14 minus 5. Okay, now what did I do, I just find the value of x in terms of y. अब ये जो x की वैल्यू मिली है इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। ये कहां से मिली है, इक्वेशन नंबर 1 से मिली है। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू 14 minus y इक्वेशन नंबर 3 में मिली। अब करना क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 1 में नहीं,
इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि ये वैल्यू हमने कहां से निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है और रखेंगे कहां इसको, इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, नाउ पुटिंग the value of x in equation number 2. Now put in the value of x in equation number 2. What is equation number 2? X minus y is equal to 4. Now in place of x we write the value of x. यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 14 minus y from equation number 3. तो जहाँ पर x था वहाँ कितना आ गया, 14 minus y, और minus y तो पहले से था यहाँ पर, is equal to 4. Now the equation number 2 changes into this equation. Equation number 2 थी x minus y is equal to 4, वो क्या बन गया, 14 minus y is equal to 4. Because instead writing x we write x is equal to 14 minus y. यहाँ पर x का मान कितना लिख दिया हमने, 14 minus y. This is called substitution. हमने क्या किया, हमने इस x को सब्स्टिट्यूट किया, किससे, y से, ठीक है। अब क्या हो गया, वी हैव अ लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल। अब इस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है y, भले वो दो बार आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही वेरिएबल है y। विल सिंप्लीफाई दिस, तो 14 minus y is equal to 4. Now it becomes 14 minus 2y is equal to 4. Now minus 2y is equal to 4 minus 14. 4 minus 14. Now minus 2y is equal to 4 minus 14. So minus 2y is equal to कितना होगा, 4 minus 14 is minus 10, and y is equal to minus 10 upon minus 2, ये आपको पता है। So 2 5s are 10, y is equal to 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5s are 10, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5. Now we found वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। हमको इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। Now we have the value of y. Now we have to find the value of x. To find the value of x, we will put this value of y is equal to 5 in equation number 3, where we have the value of x in terms of y. इसको भाग में इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। Putting the value of y in equation number 3. The value of y, equation number 3 है क्या, x is equal to 14 minus y, so 14 minus 5, so x is equal to 9. This is the value of x and this is the value of y. This is our answer of pair of linear equations. We have found the value of x and y. Again to repeat करते हैं, the method is called substitute method, substitution method. करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में, whether it is equation number 1 or in equation number 2, we have to substitute a variable in terms of other variable या by another variable. हमने इसमें क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर क्या लिख दिया, 14 minus y लिखा। ये कहाँ से मिला, ये मिला इक्वेशन नंबर 1 से। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 से भी कर सकते थे, किसी से भी करिए। x is equal to 14 minus y मिला इक्वेशन नंबर 1 से, जब y इधर मिले। Now this value, putting this value in equation number 2, we found that equation number 2 becomes this, and from after solving a whole equation we get y is equal to 5. तो हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूट किया इस x को किससे, y से, 14 minus y से। अब यहाँ से जो y की वैल्यू मिली, इसको वापस कहाँ लिख दिया, इक्वेशन नंबर 3 में रखा। तो क्या मिला, x is equal to 9, y is equal to 5. This is called substitution method. Now let us do this question. अभी हमने क्या किया, x को सब्स्टिट्यूट किया। अभी हम क्या करते हैं, y को करते हैं सब्स्टिट्यूट। इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, y को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। Now we shall solve this problem again, but now we shall substitute y is equal to 14 minus x. ये क्वेश्चन नंबर 1 थी।
अभी हमने इससे पहले क्या किया था, हमने x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लिया था। अभी हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, अब y को हमने सब्स्टिट्यूट, देखते हैं क्या होता है। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये इक्वेशन कहां से मिली, इक्वेशन नंबर 1 से मिली, तो इसकी वैल्यू कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से लाएंगे वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, तो वैल्यू कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है x minus y, तो दिस विल बिकम x minus 14 minus x, because this y will be substituted by the value of y in terms of x, in terms of x, ये y हो जाएगा substitute by this value. Now again we have a linear equation in only one variable. So x minus 14 minus x is equal to 4. So it becomes x minus 14 minus minus plus is equal to 4, that equals to 4. Now simplify this, x plus x is 2x and it becomes 4 plus 14 is equal to 18. 2x is equal to 18. 2x is equal to 18, hence x is equal to 18 upon 2, that is 9. X is equal to 9. Now to find the value of y, we put this value of x in equation number 3. We will get y is equal to 14 minus 9, that is 5. सेम आंसर आया हमारा, पहले भी x is equal to 9 5 आया था, अभी भी कितना x is equal to 9 5 आया था। तो ये हमें आंसर मिल गई। तो whether we substitute y or we substitute x in terms of y, आपको आंसर दोनों से क्या मिलने, सेम मिलने। This method is called substitution method because we are substituting y in terms of x or we are substituting x in terms of y. तो कहने का मतलब क्या है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, किसी एक इक्वेशन में से अगर हम एक वेरिएबल हटा दें और उस इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में ले आए तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो अभी अपने आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन बोथ इक्वेशंस, दोनों में रखेंगे वैल्यू और देखेंगे कि हमारे आंसर सही होते हैं। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन फर्स्ट इक्वेशन, वी शुड गेट द राइट हैंड साइड, दैट इज 14। अभी फर्स्ट इक्वेशन है क्या, x plus y is equal to 14। रखिए वैल्यू, x की वैल्यू कितनी 9, y की वैल्यू कितनी 5, what does it gives, it gives 14। so our answer is correct। in second equation, x minus y is equal to 4, put the value of x here, that is 9, the value of y here, that is 5, what does it give, it gives 4 and the right hand side is also 4, so this is correct। So both the answers are correct। 9 plus 5 14, 9 minus 5 4, so our answers are correct। I suggest you, I advise you to check your answer after finding the value of x and y by putting the value of x and y in equation number 1 and equation number 2। These values should satisfy both the equations, not only one equation but both the equations। इन दोनों को satisfy करेगी तभी हमारा आंसर सही होगा। Now this is another part of the same question from exercise 3.3. This is fifth part and the pair of linear equations are root 2x plus root 3y is equal to 0 and root 3x minus root 8y is equal to 0। Now here we have these coefficients root 2, root 3, root 3, root 8। This is equation number 1, this is equation number 2। We follow the same procedure। First of all, from any one equation, generally we take question number 1 from equation 1, we find the value of y in terms of x or find the value of x in terms of y। root 3y is equal to 0 minus root 2x, that gives minus root 2x। इस रूट को उधर ले गए तो 0 माइनस मिल जाएगा और वो मिलेगा माइनस रूट 2x। y is equal to minus root 2 upon root 3 is equal to x। एक बात को ध्यान रखना है, अगर आपको बेसिक अलजेब्रा नहीं पता है, जो आपने 7th में सीखी है, 8th में सीखी है, 6th में भी सीखी है, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो बेसिक अलजेब्रा है जिसमें हम लोग इक्वेशंस को, कोफिशिएंट्स को ट्रांसपोज करके, इक्वेशन में कोफिशिएंट आते हैं, नंबर्स आते हैं, क्वांटिटीज आती हैं,
उनको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कैसे जोड़ना है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, वो अगर आपको नहीं पता है तो आप उनको नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप उनको भी सीखिए। नाउ द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इज दिस माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये कहां से मिली? इक्वेशन नंबर 1 से मिली। इक्वेशन 1 से मिली इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू आ रही है, उसको इक्वेशन नंबर 2 में रखें। प्रोसीजर सेम है, हर बार वही प्रोसीजर फॉलो करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो वैल्यू ऑफ y क्या है? माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है क्या? रूट 3x माइनस रूट 8, और जहां पर y है, जहां पर क्या है y है, वहां पर हम ये लिख देंगे, दैट इज माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3x, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ये हमारी नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन में अच्छी बात क्या है कि हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। एक बात और थोड़ी मजेदार है समझने वाली है कि अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन, यहाँ पर दो वेरिएबल हो, अगर ये इक्वेशन हमारे पास नहीं होती या फिर ये नहीं होती और दो वेरिएबल है, तो उस एक ही इक्वेशन से दोनों वेरिएबल की एक सर्टेन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सर्टेन वैल्यू यानी निश्चित वैल्यू। आपने क्लास 9 में सीखा है, आपने क्लास 9 में इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, 2x + 3y = 5। क्या करते थे उसको सॉल्व करते वक्त? y के अपनी ओर से कोई वैल्यू लेते थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालते थे। इस तरह से हमें x और y की अनकाउंटेबल वैल्यूज मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने की, एक सिंगल वैल्यू निकालने की, x की और सिंगल वैल्यू y की। तो अगर हमको x और y की एक ही वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए या यूनिक वैल्यू चाहिए, तो हमें दो इक्वेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको दो इक्वेशन दी रहती है। अगर केवल एक इक्वेशन होती तो x और y की बहुत सारी वैल्यूज निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर दो इक्वेशन है तो हम x और y की एक यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो आराम से यहाँ से x की एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी। अब केवल अलजेब्रा में करनी है, देखो सिंपलीफाई करना है। नाउ टू सॉल्व दिस, आप इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो 3x दिस माइनस इनटू दिस माइनस विल बिकम प्लस रूट 8 इनटू रूट 2, दोनों का स्क्वायर रूट है, तो it will become root 16, okay, and in denominator it will be root 3x. इसके लिए 1 ले लेते हैं, now this is a fraction, this is another fraction, we take the LCM. The LCM of 1 and root 3 will root 3. 1 root 3 में डिवाइड करेंगे तो root 3 आएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3x। देखो आपको आता है पहले से कैसे किया, ये LCM है, इसको डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया, तो जब 1 से आप रूट 3 डिवाइड करेंगे वो रूट 3 मिलेगा, जो आंसर आता है उसको आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट 3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 3x, एंड ये सेम ही रहेगा। नाउ व्हाट इज रूट 16? रूट 16 मतलब 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और x पहले से आपके पास है इज इक्वल टू 0, 3x + 4x इज इक्वल टू 7x। अब ये रूट 3 जब इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 0 बन जाएगा, रूट 3 = 0 और x की वैल्यू क्या बनेगी 0.7, दैट विल बी 0, बिकॉज़ जब हम 0 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा 0 ही मिलता है। x = 0, क्या वैल्यू है x की 0, तो x = 0 है, तो x को मान रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, यहां से हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, x putting the value of x in equation number 3, and what is equation number 3? y is equal to minus root 2 upon root 3 into x, और x की वैल्यू कितनी निकाली है 0, तब ये 0 यहाँ पर 0 into something is 0, so y is also equal to 0, so x is equal to 0 and y is equal to 0 are answers. Now what does it mean? कि अगर इन दो लाइंस को हम ग्राफिकली शो करेंगे तो ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को कहां पे करेंगे, इनफैक्ट ओरिजिन पे करेंगे, बिकॉज़ एट ओरिजिन द कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0. So this is how we
find the solution of pair of linear equation by substitution method, by substituting a variable by another variable in equation and to find the equation in one variable. हमने किया क्या, किसी भी एक इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में ले आए। यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 को जो थी √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर से हमने y को x के टर्म में रखा तो हमें क्या मिली, पूरी की पूरी इक्वेशन एक ही टर्म में मिल गई और वो सिंपलीफाई किया और वहां से दोनों वेरिएबल। Now this is a very interesting and very important question of this exercise, question number 3rd and part 4. This is a situation. By this situation we have to create two equations, and by creating equation we have to find the values of unknown quantities or unknown numbers. So first of all let us read the question. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. You all know when we book a taxi we have to give some money to the driver. Every taxi in this situation the taxi is charging a fixed charge and adding to that fixed charge the taxi is also charging a charge per kilometer. यानी कि टैक्सी में बैठने का आपको एक मिनिमम चार्ज देना है और उसके ऊपर आपने कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय की है उसका पैसा देना है. For the distance of 10 kilometers, the charge paid is ₹105, and for the journey of 15 kilometers, charge paid is 155. So अगर 10 किलोमीटर गए तो चार्ज कितना देना है 105, और अगर 15 किलोमीटर गए चार्ज कितना देना है 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? This is first part, this is second part. Now, वापस अपने क्वेश्चन में हमें क्या चीजें निकालनी है? We have to find two things. That is, first is the fixed charge that we have to find and charge per kilometer. Per kilometer कितना पैसा देना है प्लस फिक्स चार्ज कितना देना है. तो इसको समझने के लिए हम इन दोनों क्वांटिटीज को ही अपने वेरिएबल्स के रूप में मान लेते हैं. लेट अस टेक द फिक्स चार्ज. फिक्स चार्ज क्या हुआ? लेट अस टेक दिस x, रुपीस x या x. द फिक्स चार्ज x एंड charge per kilometer is ₹1. Charge per kilometer is ₹1. कि फिक्स चार्ज x हमको देना ही देना है. हमें 1 किलोमीटर जाए चाहे 2 किलोमीटर जाए चाहे 10 किलोमीटर जाए, x रुपीस तो देने हैं. x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अभी आएगी हमारे पास वैल्यू. और y जो रुपीस है वो पर किलोमीटर चार्ज है. यानी अगर हम 5 किलोमीटर गए तो 5y, क्योंकि 1 किलोमीटर का y रुपीस है तो 5 किलोमीटर का 5y रुपीस. If we book the taxi for 10 kilometers, we have to make a payment of 10y rupees. Now, let us take our conditions or situations. In first case, the traveler moved or traveled a distance of 10 kilometers. कितना गया वो? 10 किलोमीटर गया. तो उसने कितना पैसा दिया? जब वो, let us use this space. इसको यूज करते हैं हम लोग समझने के लिए. जब वो कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया. तो हाउ मच डिड ही पे? 105. तो जब वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस में तय की, जैसे कि बताया गया क्वेश्चन में, फिक्स चार्ज देना ही देना है उसको. तो फिक्स चार्ज हमारा कितना है? x रुपीस. तो ये x और फिर दिया ही होगा. और 10 किलोमीटर का उसने पर किलोमीटर का जो अमाउंट है कितना है? y, बिकॉज हमने इसको लिया है y. तो 1 किलोमीटर का y चला कितना हुआ? 10 किलोमीटर. तो कितना बन जाएगा? 10y. तो ये अमाउंट हुई फॉर किलोमीटर्स. दिस अमाउंट इज फॉर फिक्स चार्ज. इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो वो अमाउंट बनी कितनी? 105. तो x plus 10y is 105. This is our first equation. What does it mean? That when he moved or traveled 10 kilometers, he made a payment of 105 rupees. This will be equal to x plus 10y. Because उसने एक फिक्स चार्ज दिया होगा जो कि x है और पर किलोमीटर y रुपए के हिसाब से 10y रुपीस भी दिए होंगे. This is equation number 1. Now, in second case, he traveled or he made a journey of 15 kilometers. तो यहाँ पे उसने फिक्स चार्ज x रुपीस दिया होगा और 15 किलोमीटर के कितने पैसे दिए होंगे उसने? 15y. क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना देना पड़ता है? y रुपीस. तो हमने एज्यूम किया होगा.
टोटल पेमेंट कितनी होगी x प्लस 15y और ये है किसके बराबर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 115 के बराबर, 55 के बराबर। Now we have two equations. This is equation 1, this is equation 2, and we can substitute y or x, any one variable in terms of another variable, and by following the procedure of substitution method, we can solve easily these equations. ये आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व कर लेंगे इनको by using this method, you will find the value of x and the value of y. X means fixed charge, y means charge per kilometer. You will find the answer of second question. The question is how much does a person have to pay traveling distance of 25 kilometers? तो 25 किलो से कितना पेमेंट करना पड़ेगा? जब 25 किलोमीटर जाएगा तो फिक्स चार्ज x आपको मिल ही जाएगा यहाँ से, और 25 के लिए पेमेंट कितनी रहेगी 25 y, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज है, 25 किलोमीटर की 25 रुपीज बन जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज योर होमवर्क, आप इसे खुद कर सकते हैं। सो वी डिस्कस्ड 2 or 3 questions of this exercise and I tried to explain the substitution method by solving these questions on blackboard. I hope आपको समझ में आया होगा। Now you can solve exercise 3.3. Thank you.